Welcome in Ashwini classes trigonometry part 2. In the previous part we have seen that pi radian equal to 180 degree is the relation between radian and degree what we have discussed in the previous part in part 1. So 1 radian can be written as 180 by pi, this much degree. Pi radian equal to 180 degree, so 1 radian equal to 180 by pi, and 180 degree is equal to pi radian, so 1 degree can be written as pi by 180 radian. In this way degree can be converted into radian, radian can be converted into degree. Here there are two problems where we convert radian into degree and degree into radian. The first question is for you already written. Find the degree measure of 11 by 16 radian. R means radian. Sometime in some books radian is written in this way, 11 by 16 to the power c. There is a symbol they have used. 11 by 16 c means 11 by 16 radian, or this 11 by 16 radian. It is in radian, you have to find its degree measure. Second question, find the radian measure of this. It is in given degree minute second, you have to find its radian measure. So let us see one by one, then after we discuss this third problem also. Number 1, let us see. 11 by 16 radian. 1 radian equal to 180 by pi. It is in degree. So this much radian, 11 by 16 radian equal to 11 by 16 into 180 by pi. 1 radian 180 by pi. So itna radian, this into 180 by pi. I think understand. Now this will gives you in degree. Let us see. 11 by 16, 180 pi, its approx value we take 22 by 7. Pi ka value, pi will be taken as 22 by 7. So 22 by 7, obviously 7 will go up, is not it? Now let us simplify. This will come in term of degree. We write it in term of degree minute second also. Let us see. 11 2 is 22, 2, then this will be 90. Now use, what should be used? 2, 8, then it is 45. Then again use, no, we cannot use more. So it is 45 into 7 by 8, is not it? 45 into 7 by 8. Let us multiply it. 7 5 ja 35, 5 3, 7 4 ja 28, 28 and 3 31 by 8. This much what? Degree. But we simplify it. 315, divide it by 8 and let us see what is coming. 8 4 ja 32, so here it is 31, so 8 3. 11 minus 4, 7, and here it is 1 minus 1, 0, now 5. Now I think 7 9 ja 72, so 3. Okay, so this 315 by 8 can be written as 39 is to 3 by 8 degree. Can you write in this way? 35 into 8 plus 3 by 8 it will be. ये होता है ना 35 into 8 plus 3 करने से ये आ जाता है. इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं ना, 8 into 39 plus 3 by 8 होगा ये.
एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन वी कैन राइट दिस। अब देखिए, अब है असली काम। इट इज 39:3/8 डिग्री। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ये दोनों डिग्री में, ये दोनों का सम है यहाँ, ठीक है। अच्छा, नाउ 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, 3/8 is less than 1. So if anything is coming less than 1, we convert it into smaller unit. ये चूंकि 1 से छोटा हो गया ना, 1 डिग्री से कम हो गया, तो इसको हम लोग मिनट सेकंड में फिर लिखेंगे। इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सो 3/8 डिग्री विल बी 3/8 इंटू 60। इतना मिनट हो जाएगा। फिर नहीं, डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 3/8 डिग्री में 3/8 इंटू 60 होगा। चलिए 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 4 5 जा 60। सो इट इज कमिंग 39 डिग्री प्लस it is 45/2 minute now. Okay, now 39 degree plus 45/2 minute. 45/2 minute means it is 22.5, is not it? This much minute. So let me rough. Understand up to here? ये लाइन को हटाते हैं। अब देखिए, सो इट इज कमिंग 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट है ये। सो 22.5 मिनट मीन्स इट इज 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। समझ रहे बात? 22.5 minute means 20 minute and half minute. So 22 minute plus half minute. Now it can be written as 39 degree plus 22 minute plus half minute. Now it is less than 1. जब 1 से छोटा हो जाए तो उसको स्मॉलर डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। ये मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। हाफ मिनट, मिनट को सेकंड में कीजिएगा कन्वर्ट तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो दिस मच मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? सो इनटू 60. सो यू विल गेट फाइनली 39 डिग्री 22 मिनट एंड इट इज 30. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड. 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड. So you can write it combinedly in this way: 39 degree, 22 minute and 30 second. In this way, your 11/16 radian can be converted into degree, minute and second. I think you have understand now. If given in radian, how can you convert it into degree, minute and second? One problem I have taken. Similarly, number of problems are given in your book. So any problem now you can solve by your own, where radian is to be converted into degree. जहाँ भी radian को डिग्री में कन्वर्ट करना है आप इसी तरीके से करिएगा। प्रोसेस आप सीख लीजिए इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सी लिख लीजिए, लिखना है फटाफट। सेकेंड इज फाइंड द रेडियन मेजर. This is given in degree, minute and second. You have to convert it into radian. ठीक है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Can you convert minute into radian? No. Second into radian? No. We convert degree into radian. 1 degree can be written as pi by 180 radian. So first of all we write it as a degree.
पूरा को एज ए डिग्री लिखेंगे पहले, एंड देन आफ्टर डिग्री विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन. ओके, लेट अस सी हाउ. Second sum is here 5 degree 37 minute and 30 second. Okay, first of all 5 degree it is all right, 37 minute it is all right. Convert this into minute, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ मिनट. 30 सेकेंड का हाफ मिनट होगा. 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. सो 30 सेकेंड इक्वल टू हाफ मिनट. सो इट इज नाउ 5 डिग्री 37 इज टू 1/2 इतना मिनट. ये 37 मिनट और हाफ मिनट, मतलब 37 इज टू 1/2 मिनट है ये. नाउ 5 डिग्री, ये प्लस है एक्चुअली, मैंने 5 डिग्री है प्लस इतना मिनट है. अब इसको लिखिए, ये कितना होगा 60 74 75 75/2 है ये. 37 into 2 74 74 plus 1 75/2, this much minute. So 5 degree plus 75/2 minute, convert it into degree. देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री. सो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री. इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/60, क्योंकि 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री. तो 75/2 मिनट इक्वल टू 75/2 इंटू 1/60, इतना डिग्री हो जाएगा. देख लीजिए ठीक से, 60 मिनट का 1 डिग्री, 1 मिनट का 1/60 डिग्री. सो इट विल मल्टीप्लाई विथ 1/60 इफ यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. नाउ 15 से काट दीजिए, 15 4 जा 15 5 जा. So it is your 5 degree plus 5/8. 5/8 degree. 5 degree plus 5/8 degree can be written as 5 is to 5/8. ऐसा इसको तोड़िएगा तो वही होगा. इसका मतलब ही ये होता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 5 plus 5/8 डिग्री. एंड दिस इज हाउ मच, 8 5 जा 40, 40 plus 5 45/8 डिग्री. नाउ कंप्लीट इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री. नाउ डिग्री विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन. देखिए 45/8 is in degree. 1 degree equal to pi/180 radian. So we write it this much degree equal to this much into pi/180. 1 डिग्री होता है pi/180. So this much degree equal to this into pi/180. I think this is 4 times. So this will gives you pi/32. This much radian. Pi में रहने दीजिए, radian may be in term of pi. So 5 degree 37 minute 30 second can be written as pi/32 radian. Let me see answer is there or not. Okay, answer is all right. pi/32 radian. So in this way, if it is given in degree minute second, we can convert it into radian. Now let us see one more problem. Now any problem given in term of degree minute or second, और सिर्फ डिग्री में दिया है
या सिर्फ मिनट में दिया है या डिग्री मिनट सेकंड तीनों में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप इसी तरह से कन्वर्ट कीजिए। Now here one very important thing in this question. Before solving this question, one result you try to understand. एक रिजल्ट है जिसको आप ठीक से समझिए, उसके बाद इसको बनाएंगे। It is also a result related to radian. There is a circle of center O and radius R. Okay, ठीक है। This point is suppose A. Let us take an arc AC. Here is a point C. So this is arc AC. Now I am taking here in the middle a point B such that this AB arc is of length R. ये AC एक आर्क लिए है, ठीक है, इसको मिला लीजिए यहाँ से, नो प्रॉब्लम, इसको भी मिला लीजिए। नाउ वी हैव टेकन ए पॉइंट B in between A and C such that this length is equal to the radius of the circle. रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर अगर ये आर्क है तो ये एंगल आपका होगा 1 रेडियन। यही है रेडियन का डेफिनेशन। This angle must be of 1 radian. अच्छा, again you see arc AC by arc AB. What will be arc AC by arc AB? Arc AC by arc AB equal to angle AOC. Angle AOC by angle AOB. Ratio of the arc equal to ratio of their corresponding angle. आर्क AC का एंगल है ये AOB और आर्क AB का इंक्लूडेड एंगल है ये AOB. सो दिस इज योर एंगल AOC और ये तो आपका 1 रेडियन है, नहीं, ये आपका 1 रेडियन है। तो यहां से आप निकाल लीजिए एंगल AOC, तो क्या होगा आर्क AC बाय आर्क AB। आर्क AB का लंबाई तो R है और ये रेडियन इधर आ जाएगा ना, कैन यू राइट? एंगल AOC ये वाला एंगल इक्वल टू मिला आर्क AC बाई R। ये आर्क AB का लंबाई तो R है ना, सो यू कैन राइट इट आर्क AC बाई R दिस मच रेडियन। तो आपको मिला क्या कर रहे हैं यहां? देखिए सर्कल में अगर कोई एंगल लेते हैं, जैसे ये लिए एंगल AOC, ये वाला एंगल, ये एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। एंगल का वैल्यू क्या होता है? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस एंड इट इज इन टर्म ऑफ रेडियन। सर्कल में कहीं पर भी अगर लेते हैं एंगल, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस एंड दैट विल कम इन टर्म ऑफ रेडियन। ये रेडियन में है, इसको ख्याल रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मच रेडियन, ये इंपॉर्टेंट है। आर्क बाय रेडियस कहीं भी कीजिएगा तो जो एंगल आएगा वो आपका रेडियन में होगा, नॉट इन डिग्री। जस्ट अ मिनट, रिटन। So you must remember any angle equal to arc by radius, ये होता है। या आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस भी लिखते हैं। सिंपल क्लास 9-10 का फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे ना, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियन और एंगल इक्वल टू आर्क बाय
रेडियस। तो ये आर्क बाय रेडियस जब करते हैं तो ये जो एंगल है ना, इट इज इन रेडियन। ये एंगल का वैल्यू हमेशा रेडियन में लेंगे, ये हमको बताना था। Whenever you find angle by using this arc by radius, it will come in term of radian। ये देखिए, this into 1 रेडियन था, तो ये जब 1 से इंटू होगा तो इतना ही होगा, इतना रेडियन है। समझे बात? So, this problem number 3 is based on this result। Let us see how। ये लिख लिया रिजल्ट। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देयर इज ए सर्कल। 1 second, let us read। Find the angle, find the degree measure of the angle। आपको एंगल का डिग्री मेजर निकालना है। Subtended at the center, subtended at the center of a circle of radius, इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर by an arc of length 22 सेंटीमीटर। एक आर्क है ऐसा, इट्स लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर? ये वाला एंगल थीटा सपोज। इस एंगल का वैल्यू निकालना है इन डिग्री। फिर से पढ़िए। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस है 100, एक आर्क 22 सेंटीमीटर लेंथ का, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका डिग्री वैल्यू चाहिए। ये रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। एंगल इज हियर थीटा। एंगल इक्वल टू हम लोग अभी पढ़े आर्क बाय रेडियस, ये होता है ना। व्हाट इज आर्क? आर्क इज 22 सेंटीमीटर एंड रेडियन इज 100 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम कहाँ है? 22 बाय रेडियन, 22 बाय 100, इट इज इन रेडियन नॉट इन डिग्री। अब एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस तो हो गया, अब इतना डिग्री मत बोल दीजिएगा, ये रेडियन में हुआ। कैसे समझे इसके पहले वाला? तो दिस मच रेडियन, नाउ वी कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री, इक्वल टू 22 by 100, let us convert it into degree। 1 radian equal to 180 by pi। तो this much radian equal to this into 180 by pi, इतना डिग्री हो जाएगा। अब ये समझ रहे हैं बात? एक रेडियन होता है 180 by pi डिग्री में, तो इतना रेडियन इक्वल टू 180 by pi इंटू दिस, इतना आपका हो गया डिग्री। नाउ वी सिंप्लीफाई इट। डिग्री कैन नॉट बी रिटन इन टर्म ऑफ पाई। इसको पाई के टर्म में नहीं लिखेंगे, इसको डिग्री मिनट, अगर एक से छोटा फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर उसको मिनट में, फिर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। लेट अस सी हाउ। Now we want to simplify it। Let us see। 22 by 100 into 180 by pi, pi will be taken as 22 by 7। This much degree it is। चलिए, तो अच्छा है। 22 कटा, ये 0 भी कटा। अच्छा, 2 5 जा and here 2 9, so it is coming 7 9 जा 63 by 5, इतना
डिग्री. ओके, डिवाइड 63 को आप 5 से डिवाइड कर लो. 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, so 3. So this can be written as 12:3/5, this much degree. ठीक है ना. 5 12 जा 60 plus 3, 63/5. So now this is 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री. बोले ये बात समझे कि नहीं. 12:3/5 मीन्स 12 प्लस 3/5 है वो. अब ये 12 डिग्री तो ठीक है, ये राउंड फिगर में है, ये फ्रैक्शन है ना, तो दिस फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट. इफ अगेन फ्रैक्शन कम्स देन वी कन्वर्ट इट इनटू सेकंड. सो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री यू कन्वर्ट इट इनटू मिनट. इन 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट. 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इतना डिग्री है, इसमें कितना मिनट होगा? इंटू 60, दिस मच मिनट. ऐसा 1 डिग्री का 60 मिनट, 3/5 डिग्री का 3/5 इंटू 60, 12. सो इट इज 12 मिनट प्लस 36, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट. सेकेंड नॉट मिनट, मिनट. इट इज नाउ मिनट. ओके, सो इट इज इन राउंड फिगर. फ्रैक्शन में तो नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया तो छोड़ दीजिए. इट इज 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर. समझे बात? इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री. इट इज ऑलरेडी, it was in radian. Radian is converted into degree. Now by simplifying it is written in degree and minute. Second is not required. ये अगर फ्रैक्शन में आता, फिर मैंने 36 डिग्री कुछ फ्रैक्शन में सेकंड आता, फ्रैक्शन में मिनट आता, तो फिर उस मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दीज वेर सम प्रॉब्लम्स वेर आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड how to convert radian into degree, degree into radian, or secondly in a circle angle equal to arc by radius. ये तो जनरल सिंपल फिजिक्स वगैरह में पढ़े हैं कि एंगल इक्वल टू लेते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, बट इट विल बी ऑलवेज इन टर्म ऑफ रेडियन. सो a number of questions are there where this result is used arc by radius equal to angle, and that must be taken in term of radian. Then radian can be converted into degree, minute, second. So in this video this much. Go on watching trigonometry. In part 3 we discuss few very important results for class 11 trigonometry. So thank you for watching.